Hello everybody, this is Hitesh Vardati from Motilal Nehru Public School, and today I am back with another video on the chapter India Size and Location from the Geography book of class 9th NCERT. So let's begin with the topic. India size and location. So as we all know, India is a very big country, and it has a very important location as well in the world. So let's discuss and I'll explain to you guys that how this size and location is important and significant to India, and how it affects the Indian market or Indian population. So first of all, if we talk about India, India is a vast country. Vast means a very big country. As we all know, India is the seventh largest, so it is a very big country which lies in the northern hemisphere, which means northern hemisphere means it lies above the equator. So equator is the line which divides the earth into two equal parts. The a part above than the equator is northern hemisphere, and the part below the equator is southern hemisphere. And India lies totally in the northern hemisphere. That means it is above the equator of the earth. मतलब क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जो कि अपने साइज़ और लोकेशन के लिए काफ़ी फेमस भी है. और इंडिया अपनी लोकेशन, अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो वो इक्वेटर से बिल्कुल ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इफ़ वी टॉक अबाउट द लैंड एक्सटेंशन, अगर हम लैंड एक्सटेंशन की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल extension, so latitudinal extension will be 8 degrees and 4 minutes. इसको पढ़ने का तरीका यही है, 8 degrees and 4 minutes to the north and 37 degrees and 6 minutes in the north. So latitude extension of India is extends from 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north. And if we talk about the longitudinal extension, it extends from 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. So if we talk about the extension, the north में India 8 degrees 4 minutes north से लेके 37 degrees 6 minutes north तक extend करता है. एंड अगर हम longitudinals की बात करें तो 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक इंडिया एक्सटेंड करता है. और अगर लैटिट्यूड्स की बात हो ही रही है तो देयर इज वन मोर लैटिट्यूड, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर which passes through. If I talk about this map, I'll take the example from the map. This is the Tropic of Cancer, and it divides the country in almost 2 equal parts. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को लगभग बराबर के 2 हिस्सों में बांटता है. इसको हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स हु स्टडी एसएस इन हिंदी. तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसको कर्क रेखा भी कहते हैं, और ये हमारे भारत देश को लगभग बराबर के 2 हिस्सों में बांटता है. आगे बात करते हैं टू द साउथ ईस्ट. अब इंडिया के साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट, कमिंग बैक टू द मैप, साउथ ईस्ट. सो ईस्ट इज this side and south east is this. So these are the island group which is known as Andaman and Nicobar Islands, and to the southwest is Lakshadweep Island. So Lakshadweep Island is in the Arabian Sea, and Andaman Nicobar Islands lies in the Bay of Bengal. And to the south of India it is the Indian Ocean. This is the Indian Ocean. Okay, so coming back to the map, so the Tropic of Cancer also lies on the 23 degrees 30 minutes north. If we talk about the location of the Tropic of Cancer, it lies at 23 degrees and 30 minutes north. Now I'll explain it with the help of map.
So this is a rough diagram, a rough map of India. Okay, this is the northernmost part of India, this is the southernmost part. ये उत्तरी किनारा है, ये दक्षिणी किनारा है हमारे भारत देश का. This is west and this is the east side. Okay, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है. अब बात करें हमारे भारत के डिस्टेंस की. So the things which I was telling you was 37 degrees 6 minutes north to 8 degrees 4 minutes north. Because India lies in the northern hemisphere, वो उत्तरी ध्रुव में ही लाई करता है. हमारा भारत देश पूरा उत्तरी ध्रुव में ही है, इसलिए ये दोनों जो कैलकुलेशंस हैं वो नॉर्थ में ही कैलकुलेट की जा रही हैं. बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट की, तो 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज टू 25 मिनट्स ईस्ट. अब आप ये भी कहेंगे कि ये तो वेस्ट किनारा है, तो यहाँ पे ईस्ट क्यों? बिकॉज इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्ट हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ईस्ट की साइड पड़ता है, इसीलिए हम जो कैलकुलेशंस हैं वो डिग्रीज ईस्ट में करते हैं. I was telling you about Lakshadweep Islands. So these are the Lakshadweep Islands. These are the Lakshadweep Islands in the southwest. This is the Arabian Sea. Here it lies. And these are the Andaman and Nicobar Islands. These lies in the Bay of Bengal. And this is the standard meridian of India. This line is drawn to calculate the time, because there is a difference of distance between the easternmost part and the westernmost part. So this line is drawn and to calculate a standard time for the whole country. This passes through Mirzapur. This is the point where it lies, Mirzapur in Uttar Pradesh. अब क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से डिफरेंस है. अब अगर हम नोटिस करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक कम, और ये बिकॉज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. सो ईस्टर्न साइड विल बी टुवर्ड्स द सन बिफोर द वेस्टर्न साइड. सो देर इज अ 2 hour डिफरेंस. तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम गैप होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में. बट क्यों पूरे कंट्री का एक ही टाइम दिखाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो करते हैं जो मिर्ज़ापुर इंडिया से निकल के जाती है, जो पूरे कंट्री का एक ही टाइम दिखाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द कंट्री, द टोटल लैंड मास और द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 million square kilometers. The total land area which India occupies in the world, it is 3.28 million square kilometers. And this 3.28 million square kilometer is equal to 2.4% of the total land mass of the world. अब ये जो 3.28 million square kilometer है, ये पूरी दुनिया का almost 2.5%, almost 2.5% कवर करता है. Which makes our country, our own country, India, the 7th largest country of the world after these following countries. We are the 7th largest country in the world. India is the 7th largest country in the world. पूरे दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश भारत है. और उससे पहले जो देश आते हैं, रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, 4th नंबर पे चाइना, 5th is Brazil, 6th is Australia, and 7th is our own country, India. Now, if we talk about the total length of the Indian border, the total length of Indian border is 15,200 kilometers, out of which the length of the Indian coastline is 7,516.6 kilometers. तो टोटल एरिया, जो टोटल बाउंड्री है, जो टोटल बाउंड्री लैंड और वाटर को मिला के है, दैट इज 15,200 किलोमीटर्स. एंड अगर उसमें से कोस्ट लाइन की हम बात करें, जो समुद्र किनारा हमारा पड़ता है, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर्स. टॉकिंग फर्दर अबाउट द इंडियाज लोकेशन, इन द नॉर्थ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया देयर इज अ बिग माउंटेन रेंज विच वी कॉल द ग्रेट हिमालयस. तो नॉर्थ से लेके उत्तर दिशा से लेके उत्तरी किनारे से लेके उत्तरी पूर्वी किनारे तक
हम यहाँ पे मैप की मदद लेंगे। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये उत्तरी किनारा है और ये पूर्वी किनारा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक माउंटेन रेंज है जो हिमालयाज कहलाती है, जिसे हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिमालयाज से कवर्ड है इंडिया, जिसकी वजह से एक बॉर्डर भी बनता है चाइना और इंडिया के बीच। Coming to the next point, in the south of India, Indian Ocean is there and India is the only country after which an ocean has been named. अब अगर हम साउथ की बात करें, ये तो हमने नॉर्थ की बात कर ली, अगर हम साउथ की बात करते हैं तो दिस इज द सदर्न पार्ट, दिस इज द सदर्न डायरेक्शन टू इंडिया। सो ये जो हिस्सा है, दिस इज द इंडियन ओशन एंड बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड द biggest coastline in the Indian Ocean, this ocean is named after our country। क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन और हमारी लोकेशन ऐसी है इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से एक महासागर का नाम हमारे देश के नाम पे पड़ा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम इंडिया की लेंथ की बात करें, डिस्टेंस की बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो कश्मीर से लेके दिस इज कश्मीर, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, दैट इज 3214 किलोमीटर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, दिस इज 2933 किलोमीटर्स। तो उत्तर से लेके दक्षिणी किनारे तक हमारे भारत देश की दूरी जो है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और अगर हम पश्चिम से लेके पूर्वी किनारे तक देखें तो ये दूरी है 2933 या 2933 किलोमीटर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो डिस्टेंस है, अभी मैं बात भी कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से, ये यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लैग है। लैग मीन्स डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस वो इसलिए है क्योंकि अर्थ जब रिवॉल्व करती है, हमारी पृथ्वी जब अपनी ध्रुवी पे घूम रही होती है, अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है, तो ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 4 मिनट तक सूरज के सामने रहते हैं। तो जैसे ही ये आगे चला जाए, ये हिस्सा पहले सूरज के सामने आएगा, तो इसलिए यहाँ पे सूरज पहले दिखाई देगा और यहाँ पे बाद में। इसी वजह से यहाँ पे 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। बट ताकि पूरी कंट्री में एक ही टाइम स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि मिर्जापुर से होके गुजरती है, हम इसे फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, देयर इज अ टाइम लैग of 2 hours between Gujarat and Arunachal Pradesh. So this is Gujarat and this part is Arunachal Pradesh. अब इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, which means the sun rises in Arunachal Pradesh 2 hours before Gujarat, but because of the standard meridian, a common time is taken for the whole country. अब क्योंकि अलग अलग टाइम दिखाएंगे तो वो सही नहीं होगा ना, तो इसीलिए ताकि पूरी कंट्री में सभी घड़ियां एक ही समय दिखाएं, इसीलिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो करते हैं जो कि पूरे देश का समय दिखाती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडिया एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड। So the Indian land mass has a very specified and central location. I'll again demonstrate this through a map. मैं फिर से मैप की मदद लूँगा। अगर हम यहाँ पे देखें, इस मैप में देखें तो इंडिया की लोकेशन जो है, हम यहाँ से यहाँ अफ्रीका के साथ भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ईस्टर्न एशिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, एंड वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर द ट्रेड रूट्स। एंड इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया की जो एक्सटेंशन है, अब यहाँ से आगे एशियन कॉन्टिनेंट नहीं है, दिस इज यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट फिर एक तरफ हो जाता है। बट बिकॉज ऑफ द इंडियन साइज, हमारे भारत देश के साइज को देखें और इसकी कोस्ट लाइन को देखें, तो वी आर द मोस्ट लकी पीपल, बिकॉज हमारी इतनी लंबी कोस्ट लाइन की वजह से हम बहुत सारे ट्रेड रूट्स कर सकते हैं, ट्रेड रूट्स पे हम अपना ट्रेड कर सकते हैं।
The location provides a strategic business and exchange point to the Indian subcontinent. And now talking about the Indian subcontinent, what is Indian subcontinent? All these countries, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thailand, all these countries comes under the Indian subcontinent. And this location provides a strategic point, because from this point we are connected to the whole world by the maritime business. सो पानी के रास्ते से हम यहाँ पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं इस लोकेशन की वजह से. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दिस लोकेशन हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. यही बात मैंने आप लोगों को बताई कि इसी लोकेशन की वजह से हम पूरी दुनिया में अपना व्यापार कर सकते हैं. और नो अदर कंट्री हैज़ दिस मच लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन. अब हमारे देश जितनी लंबी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की इंडियन ओशन में नहीं है. इसी वजह से इस ओशन का नाम हमारे देश पे पड़ा है. और नेक्स्ट चीज क्या है, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन एक्सचेंजिंग गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज अमंग वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, एज द ओल्डर रूट्स वर नॉट केपेबल ऑफ. अब हम अगर बात करें पुराने रूट्स की, जो सिल्क रोड होता था या और पुराने जो बाय लैंड रूट्स होते थे, वो इतना केपेबल नहीं थे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करने में. जो वस्तुएं और जो सेवाएं हम दूसरे देशों से एक्सचेंज कर सकते हैं आज के टाइम पे बाय द रूट ऑफ वाटर, वी वर नॉट एबल टू डू दैट बाय द लैंड. Now talking about the Indian neighbors, the countries which are neighbor to India. First I will tell you on the paper, then I'll show you the map. पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. Our country occupies an important strategic position in South Asia. ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं इस चैप्टर में, इस लेसन में हम बार बार कर रहे हैं कि इंडिया की लोकेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और इस वजह से हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं. India shares its land borders with Pakistan, Afghanistan in the northwest, with China, Nepal and Bhutan in the north, with Myanmar, Bangladesh in the east, and with Sri Lanka and Maldives. These are the country in the ocean. So we share the water boundaries with these two countries. Now taking the help of the map, I'll take the help of map. So this is Pakistan. We share a huge border with Pakistan, with China. This is Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar. So these are the countries. This is Afghanistan. So these are the countries with which we share the land border. And talking about Sri Lanka and Maldives, this is Sri Lanka. This part is Sri Lanka, and this is Maldives. So these are the neighboring countries to India. Myanmar in the east, Bangladesh in the east, Bhutan in the north, Nepal in the north, China in the north, Afghanistan in the northwest. So I'll zoom it. मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ. This is the area which we share. This is the border which we share with Afghanistan. ये वो border है जो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं. इसके बाद पाकिस्तान और Maldives and then Sri Lanka. So this was the chapter India size and location, and I hope you guys would be able to understand the way I taught you. Thank you.